पेपर 1 एंड पेपर 2. बाकी स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि यू हैव टू सॉल्व पेपर 1 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम रेड स्पॉट टॉपिकल. ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम हो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू मी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिजिक्स का सेकंड सेक्शन. अगर आप लोग अपने पैम्फलेट्स का फर्स्ट पेज देखें तो वहाँ मैंने आपको बताया था दैट द फिजिक्स करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. ठीक है जनाब, तो पहला जनरल फिजिक्स, दूसरा थर्मल फिजिक्स, जो कि हम थर्मल फिजिक्स का आधा पार्ट ग्रेड 9 में कर रहे होते हैं, विच इंक्लूड्स जस्ट 2 चैप्टर्स. तो आज थर्मल फिजिक्स का वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री. ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी यू विल गेट टू नो कि इट्स द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम केमिस्ट्री एंड यू हैव ऑलरेडी डन दैट. Since it's a very simple chapter, an easy chapter, that's why I have taken you people online for this chapter so that we can focus on specific heat capacity and temperature during the last week. Chalo ji, am I audible to every one of you? Yes. And can you all see the screen? Okay. Ask Ibrahim to send me the request again. By mistake, I denied the request, Zaria. Ask him to send the request again. Okay, beta. Chalo ji, let's start. Okay, I can see your messages. No need to write more messages. Okay? Okay, so we are starting with the unit kinetic model of matter. अच्छा जी, जब भी हम काइनेटिक मॉडल की बात करते हैं, अच्छा द notes which are being shared on your screen, I want each and every one of you, you have been briefed already in the class all about it, that these are the same notes which you people write in your pamphlets from the whiteboard. So I have typed my notes over here on a PPT. The diagrams are here. Whichever diagram you will be required to draw, I'll let you know. तो ये स्क्रीन पे जो नोट्स आ रहे हैं ये आप लोगों ने हेडिंग डाल के बिल्कुल एज इट इज अपने पैम्फलेट्स में साथ साथ कॉपी करना है. मैं समझाती जाऊंगी एंड देन वील हेड अप टुवर्ड्स द पास्ट पेपर सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये सब कुछ आपने लिखना है. चैप्टर का नाम मैं दोबारा दिखा रही हूँ, इट्स काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर. राइट डाउन टुडेज डेट. ऑन मंडे आई एम गोइंग टू चेक एवरीवन्स पैम्फलेट फॉर इट. ठीक है, you should have the notes, you should have the worksheet which you have already got in school today in your pamphlets. Okay everyone, let's continue. So the chapter name is kinetic model of matter, which is the first chapter of thermal physics. Acha, before starting with the chapter, I would like to know from the name thermal, what do you people get? You can be vocal, you can switch on your mics. From the word thermal, what comes in your mind? Heat. Yes, heat. Okay, good. The word thermal actually means heat. Acha, in this chapter, kinetic model of matter, from the name, it's very clear that we are going to discuss some model of matter. First of all, I would like to know, what do you think? What is matter? You can switch on your mics. What is matter? Yes, anyone? What do you think? What is matter? Come on, Andy, be vocal. Any amount of Okay. substance which has a mass. Okay. Anything that has mass and occupies space, that is termed as matter. ठीक है, अब इतना तो हमें पता है कि anything that has a mass and occupies a space is matter. Now just please let me know how many states of matters are there. How many states of matter are there? 3. Okay. Three, Solid, sometimes liquids, four. and gases. Okay. How 4, Ayan? Plasma. वेरी गुड, बट दैट्स अ वेरी रेयर केस. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा जनाब, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम. सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी हैव मेनली द 3 states of matter, right, that are solid, liquid and gases. अच्छा, I would like to know who is this Aisha Hamad. Who is this Aisha Hamad? बस 9I की स्टूडेंट है. How come she has joined the class? Okay, chalo. Okay, she can. Chalo, let's further continue. Okay, so we were talking about the matter. There are 3 states of matter: solids, liquids, and gases. Water is a matter which is found in all the 3 states. Okay? Water as solid is ice, you know that. Water as liquid is the liquid water, and water in the gaseous state is the steam. Okay? So out of the 3 states of matter, water is that matter which is found in all the 3 states. Now let's come on to discuss
the properties of matter. When we talk about the matter, we have to discuss the properties of all the three states of matter separately, one by one. Are you all along with the explanation, copying down the notes? Please let me Yes. know. Okay, good. Continue with it. The notes are on the screen. Okay? Yes, you are supposed to write each and everything from the screen. Even the diagram which is there for solid, you have to draw it. Ubaidullah, why the pamphlet is not with you? Everybody has their pamphlet. I haven't taken anyone's pamphlet for checking. Okay, okay, fine. Do it on a rough paper or a copy, wherever you want. So we were discussing the properties of matter, right? So the first state of matter which we are going to discuss is solid. ठीक है जनाब? तो पहली स्टेट अगर हम मैटर की सॉलिड के बारे में बात करेंगे, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द नोट्स, आई वुड लाइक यू पीपल टू गिव योर कमेंट्स. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज अ सॉलिड and how can you define the solid state? Yes, anyone? The particles are tightly packed. Very good, Which has a Talal. definite mass, shape. Okay, they have a definite mass and shape. Particles are tightly packed together. Anyone else? They can be Identity. compressed. Yes, very good. They can't be compressed. Anyone else? They have a fixed volume. Yes, they have a fixed volume. They have a fixed area. Yes. Yes. Anyone else? The force of attraction is very high. Yes. density. Very good. High Yes, they have density. high. Yes, exactly. अच्छा चलो अब आप इसको conclude करते हैं with an example. Solid state of matter is one in which the particles are very tightly packed together. Let's take an example of a wood. ठीक है, wood is a solid piece. Plastic is a solid piece. ठीक है जनाब? So whenever we look upon the wood, we look upon the metal, we look upon the we can say plastic. So these are the solid materials. We can see that the solid materials are usually very hard. Whenever we talk about the solid materials, if they are usually hard or जैसे कहा जाए why they are hard or why, because it's actually because their density is high. Density पे अभी हम बात कर चुके हैं mass weight and density में. सबसे पहले कोई मुझे define करे what is density, ताकि फिर मैं relate करूँगी. Yes, anyone? Yes. Mass upon volume. ये तो formula in simpler terms. Anyone who can define density? Volume. Very good, Abdullah. Yes. So density is defined as the mass present in a unit of volume. For example, in a meter cube, how much mass is present? That means how many molecules are there. Since we know that in a solid state, there are more and more molecules present which are tightly packed together. ठीक है? Because of that, because there are more and more molecules, ठीक है, in solid which are tightly packed together, that is why the density of solids is very high, because in a unit volume there are more and more of the molecules. That means greater mass is there in a unit volume in solids. That is why the density of solid is very high. So in a solid state, the particles are closely packed together. Ibrahim, you need to write these notes in your pamphlet. Write down today's date. The chapter name is Kinetic Model of Matter, and start copying the notes. As you were briefed in the class, you are supposed to write each and everything in your pamphlet along with the diagram. Come on. Okay, so we were discussing about the properties of solid matter, that the particles in the solid state are tightly packed together. Okay, since the particles are tightly packed together, that means they have a very strong force of attraction between them. That is intermolecular force of attraction. Okay, what is it called? Intermolecular force of attraction. So the intermolecular force of attraction between the solid molecules is very high. That is the reason why the molecules are tightly packed together. ठीक है? ये question past paper में आया है. Why the molecules in solids are tightly packed together? It's all because of the intermolecular force of attraction, which is very high. अच्छा, since the molecules are tightly packed together, therefore they cannot move about in solid, right? They cannot move about in solid, so they just vibrate to and fro at their very positions, right? So they just vibrate to and fro and cannot change their position in solid, right? And that is the reason, since the molecules cannot change their positions, their places, the molecules are tightly packed together, the molecular force of attraction is very high. Therefore, the solids have a fixed shape,
they have a fixed volume, right? And since they have a fixed shape, a fixed volume, the intermolecular force of attraction is strong. The solids cannot be compressed easily. For example, wood है, metal है, plastic है, you cannot compress that very easily. सही है? Because the molecules are very closely packed, there is no space in between the molecules, and they just vibrate to and fro. And the density is very high. That means more number of molecules, more and more of the molecules are there in a unit volume of a solid. That makes its density very, very high. Clear everyone? चलो अब जल्दी से स्क्रीन अगर कॉपी कर लिए हो यहाँ तक के नोट्स along with the molecular structure of solid diagram, so I can move forward. Anybody who is doing it, they can just let me know. I'll wait for them. I'm done. Okay, good, Talal. रुक जाए मिस, रुक जाए. हाँ, I'm waiting. Okay, copy it down. जैसे ही मैं स्क्रीन चेंज किया करूँ ना, फौरन से आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर दिया करो. I'm waiting. अच्छा, stop writing in the comments please. अपना टाइम नहीं जाया करो. मिस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप आगे बढ़ा दे, मैं बाद में कर लूंगा. इब्राहिम कर लेना. मंडे को आई एम गोइंग टू चेक द पैम्फलेट, राइट? ठीक है. ओके, चलो ठीक है. लेट्स कंटिन्यू फर्दर अहेड. जस्ट अ सेकेंड. Okay. Now let's discuss the second state of matter, that is liquid. You are again required to copy the properties of liquid in your pamphlet along with the diagram. Please start writing it, okay, while I'm explaining it to you people. Okay, start pooling in with your comments. What do you think? What are the properties of a liquid state of matter? Come on, start. They can take one the by one. shape of a container. Very good, Talal. They can take the shape of the container. Yes, anyone else? They can Yes, flow. very good. They can Indefinite flow shape. Here, molecular forces are weak. as Indefinite compared shape. to solid. High density. Okay, good, Bilal. Okay. Anyone else? Indefinite shape. Very good. They don't have a definite shape since they take the shape of container. Very good. It So you cannot people Okay. have. Yes, Bilal? It cannot compress. Yes, they cannot be compressed. Good. अच्छा, अब देखो असल चीज है, तुम लोगों ने माशाल्लाह से ऑलमोस्ट खुद ही कंक्लूड कर दिए हैं all the properties of liquid since you have learned this chapter in भाई, chemistry yeah. as well. Sorry, yes, Ubaidullah? Okay, so we were discussing the properties of liquid. Okay, particles in a liquid are close together, but when we compare the structure of a liquid, so the particles as compared to the solid, particles in liquid are a bit far away from each other. That means the particles in a liquid can move about, but not that vigorously as in a gas. Are you getting it? The particles are close together, but compared to the solid, particles are little far away. So they can move about, but not vigorously. Second thing is, since the particles are slightly far away, so we can say that the force of attraction, that is the intermolecular force of attraction in between the liquid molecules, is weaker as compared to the solids, but stronger as compared to the gases. Getting it? ये comparison भी आ जाता है आपके paper 1 में MCQs में. ठीक है? If we compare the intermolecular force of attraction of solid, liquids and gases, so it is highest in solid, then lesser in liquid, and least in gases. Obed, please stop writing in the comments. मैं पहले बता चुकी हूँ, you are not here to waste your time. जी जनाब. Okay, so continue further. इतना मैंने बता दिया. उबैद, मुझसे फालतू बातें बेटा यहाँ नहीं पूछो ना, अपना टाइम जाया करो ना तुम बाकियों का करो. You are not here to entertain others. ठीक है? Let's continue. Okay जनाब, तो particles are close together as compared to solid. ठीक है? Particles are close together, but when we compare it to solid, they are a bit further away. Since the force of attraction as compared to the solid is weaker, that is the reason why the particles are slightly further away and they can move about. Since the intermolecular force of attraction is weaker compared to the solid, that is the reason why the molecules move freely from one place to another in a liquid. And since the molecules are moving freely from one place to another in a liquid, that is why the liquids do not have any definite shape, but
they have a fixed volume. Why do they have a fixed volume? Because they take the shape of Container. Container. yes, and every container has a fixed volume. That is the reason we say that the liquids have a fixed volume. Liquids can never be compressed. अगर एक ग्लास में कोई लिक्विड है, मैं आपसे कहूँ कि आप कोई ग्लास के ऊपर पिस्टन लगा दो और उस लिक्विड को प्रेस करो तो क्या होगा? वो लिक्विड एक्सपेल आउट हो जाएगा. लिक्विड कैन नेवर बी कंप्रेस्ड, राइट? अच्छा, since the molecule in a liquid are also closer together, but compared to solid they are farther away, so the density of liquids is also high, but if it is compared to the solids, so lesser than that in solids. यानी कि number of molecules in a unit volume in a liquid, ठीक है, are lesser as compared to the solids, but are higher as compared to the gases. So we can say that the liquids have moderate density or even high density, but as compared to solids, it is lesser than solids, but greater than gases. So we are done with the liquids. You can see the molecular structure of liquids. The molecules are randomly arranged. Okay, there is no definite structure. They are about to move freely from one place to another, since the intermolecular force of attraction is not that high as in solids, right? So the molecules can easily move from one place to another, and they don't have any definite shape but have the fixed volume. Yes. So have you all written it? Yes. Okay, good. Shall I change the slide or anybody is writing it? You have to draw the Yes. diagrams as well. Okay, I am holding it. Please draw the diagrams as well. If you will ask me, I'll share the previous slide as well again. You have to draw the diagram. As soon as you have completed it, let me know. I'll head up forward. Okay, shall I continue? I'm again asking, shall I change the slide? If anyone is still writing, you can tell me. Okay, that means everybody, I think, is almost done. So let's move on to the next slide. That is the properties of gaseous state of matter. Let's start with it. Okay. Yes, come on, start pulling in with your comments. What are the properties of a gas? Yes, anyone? Okay, good. No Can be force of compressed. attraction. What about the force of attraction, Talal? No force Yes. of attraction. Yes, Low no force of density and attraction. it can compress. Okay. It can't be compressed. It can Hard. compress. It can compress. ठीक है, good. Okay. Anyone else? Mustafa, Saad. Yes, Aurangzeb. You can ask him to join from his any other ID. I'll allow him. Walaikum assalam, Mustafa. I think this is not fair. I was not expecting it from you. I'm so sorry. जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की. आपने कहा कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बेटा प्लीज माइंड इट, ऐसा नहीं होता कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो गैस इवन कंटेनर में रखना भी मुश्किल हो जाता, राइट? विल यू ऑल प्लीज स्टॉप राइटिंग इन द कमेंट्स? आई थिंक यू शुड फोकस ऑन राइटिंग द नोट्स ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है? जब हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो the particles in a gas are very much farther apart. Why?
because the intermolecular force of attraction between the gaseous molecules is very weak, is very low. That is why the molecules are very much farther apart. And the particles can randomly move here and there. They are free to move about in a container where the gas is kept. Since the molecular intermolecular force of attraction is very low, so the molecules randomly move here and there. And that is the reason why the gases does not have any fixed shape or even the fixed volume, right? Volume बढ़ाओगे पूरी spread हो जाएगी, volume कम करोगे कम volume में adjust हो जाएगी. So they even do not have any fixed volume, neither the fixed shape, right? They can be compressed very easily. अगर एक सिलेंडर में आपने गैस रखी हुई और ऊपर पिस्टन लगा दोगे, पिस्टन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू compress any gas, ठीक है जनाब, in a container. अब अगर आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करोगे तो आपका वॉल्यूम समझो कंटेनर का कम होता जाएगा. So that means the gas can easily be compressed since the spaces between the molecules are there. So the molecules will come near to each other if you move down the piston. So that means the gases can be compressed. No, it has not been shared. आपने नोट्स पहले यहीं से कॉपी करने हैं, वो मैं बाद में देखूंगी कि मुझे कैसे शेयर करना है. I want every one of you to write down the notes along with me. मैंने पहले सुबह ही बता दिया था ये बात. Clear? You all are supposed to write the notes right now. ठीक है? ओके, तो हम बात कर रहे थे gaseous. Yes, sure. If you can record the meeting, I would literally appreciate it. क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा रिकॉर्ड मीटिंग का. अगर किसी के पास आ रहा है तो प्लीज रिकॉर्ड इट एंड डू प्रोवाइड द लिंक टू मी एज वेल. ठीक है जनाब, सो दैट आई कैन शेयर इट ऑन द GC. gases की, ठीक है जनाब. So whenever we talk about the properties of gases, so the particles are very much farther apart since the intermolecular force of attraction between the molecules is very weak, is very low. That is the reason why the molecules move randomly and freely all about the volume which you have provided to a gas. That is the reason why the gases have no fixed shape, no fixed volume. They can easily be compressed and they have a very low density. Low density means the number of molecules, that means the mass present in the unit volume. The mass is actually made by the number of molecules present, right? So that means there are very few molecules present. The mass is very less for a gas in a unit volume. That is why the gases have a very low density. So we are done with the properties of all the three states of matter: solids, liquids, and gases. Now I am heading on towards the kinetic model of matter. What is kinetic model of matter and what does it states? Are you all done with this slide? Shall I? Diagram has also been drawn. जी, आगे बढ़ूं बेटा? If anybody is still writing it, please let me know. Shall I move ahead? Okay, I am moving because nobody responded. No? Okay, Obed. Obed, just let me know once you are done. Okay, चलो जी, let's move ahead. अच्छा, पहले काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर पे जाने से पहले यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये डायग्राम बेटा आपने ड्रॉ नहीं करनी है. आपने सिर्फ ये चार्ट बनाना है, अपने पैम्फलेट में हेडिंग देनी है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर और ये चार्ट जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, राइट? You are required to draw this chart, only this chart, not the diagram. The diagram is not required, only this chart has to be drawn in your pamphlets. Clear everyone? Start drawing the chart and let me explain it over here. अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे हैं तीन states of matter हमने डिस्कस कर लिए. One is solid, another is liquid. We have discussed the properties of all the three states: solid, liquids, and gases. Now, do you know all these three states of matter changes into one another? That means solid can change into liquid, liquid into a gas, gas into a liquid, and liquid again into solid. If you can see, which process is responsible for changing a solid into liquid? Yes, anyone? Yes, very good. Melting is the process in which a solid changes into
लिक्विड. अच्छा, अब मुझे यहाँ कोई बताएगा हाउ डू वी मेल्ट द सॉलिड? कैसे मेल्ट किया जाता है? बाय रेजिंग. वेरी गुड. दैट मीन्स टू मेल्ट द सॉलिड वी नीड, ये मेरी बातें बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो अब अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो बेस ही इस कॉन्सेप्ट पे करता है जो अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है जनाब. मैंने आपसे कहा फॉर द इंटरचेंज ऑफ states of matter, right, that is solid into liquid, melting is the process which is responsible. For melting a solid, we need to provide it with the heat. Heat means the temperature has to be raised for a solid to change it into a liquid. Now, if we are required to change the liquid into a gas, which process is responsible? Condensation. I'm asking Evaporation. liquid into a gas, Talal. Evaporation. Liquid into a gas. Yes, evaporation. And we can even say the boiling, right? Evaporation and boiling as well. When we boil something, it evaporates. Say somewhere in your books you will find the word boiling, and somewhere you will see the word evaporation, right? So to change a liquid into a gas, the process of evaporation is responsible, or boiling is responsible. Acha. To change the liquid again into a gas, we need to provide heat to it, right? Beta, transpiration is something related to biology in which a leaf releases water from it or any plant. ठीक है जनाब. तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी हम फिजिक्स से रिलेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करें टू चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस. Then to change a liquid into a gas, sublimation is responsible. Huh? No. Gas to liquid. गैस टू लिक्विड, एग्जैक्टली. ठीक है. तो अच्छा जी, अब हमने बात की बेटा, ये चैट पे छोड़ दो जरा, आके ये जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो सुन लो और जल्दी से कॉपी कर लो ये नोट साथ साथ. ठीक है. अच्छा जी, तो हम बात क्या कर रहे थे? मुस्तफा साथ, प्लीज स्टॉप राइटिंग. Okay, so we were discussing how the different states of matter change into one another. So to melt a solid into a liquid, we need to provide heat to it. We need to raise its temperature, and through the process of melting, the solid changes into liquid. Now to change a liquid into a gas, the process of boiling or evaporation is responsible, in which we provide heat or the temperature is raised for a liquid, and therefore the liquid changes into a gas. Now, which process is responsible to change a gas into liquid? Condensation. Condensation. Now, can anyone tell me, is the heat provided to a gas to change it into liquid, or the heat is released from a gas to change it into liquid? Release. Yes, very good. This is the concept which you need to keep in your mind. Ahmed Khan. I know who is. Please stop writing in the comments, बेटा. आप लोग अपना फोकस यहाँ से समझो. डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वहां बातें करके. बातें करनी है, यू कैन लीव द क्लास, गो अहेड एंड टॉक विद ईच अदर. इतना अगर अपना भी टाइम निकाल रहे हो, मेरा भी टाइम जा रहा है, प्लीज स्टॉप इट जी. तो हम बात कर रहे थे टू चेंज अ गैस इनटू अ लिक्विड. ठीक है. वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, इन विच अ गैस इज cooled down to change it into liquid. And to cool down a gas, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम किया जाता है. जब गैस का टेम्परेचर कम किया जाएगा तो the heat stored in the gas will be released. Zaryab, can you please switch off your mic? Thank you. ठीक है जनाब. तो इस तरह गैस चेंज हो गई लिक्विड में विद द रिलीज ऑफ हीट. नाउ टू चेंज द लिक्विड इनटू सॉलिड, फॉर एग्जांपल पानी को फ्रीज करने कहाँ रखते हो? फ्रीजर में. So that means you need to lower down the temperature of liquid to change it into solid by the process of freezing. So again the question comes, is the heat being released in the process of freezing or being provided in the process of freezing? Released. अब जहन में अच्छी तरह से ये बिठा लो, the two processes, melting and evaporation or boiling, are responsible to change solid into liquid, liquid into gas, in which we provide heat to change the state. While the remaining two processes, condensation and freezing, are the processes which change the state, but in these processes we do not provide the heat, rather the heat is being released in these processes to change the state. Ji Ayan. Miss, I have a question. Like, what is the process of dry ice? From where it turns from solid directly to gases?
अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और बताती चलूँ, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर तुम स्टार्ट करने जा रहे हो ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, उसमें आप पढ़ोगे पूरा आइस और वाटर के बारे में. वाटर इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शनल केस. मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्लू देती हुई जा रही हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा. अभी मैं उसकी डेप्थ में जाऊंगी तो हम अपने टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे. आयान, सुनना मैंने क्या कहा. मैंने कहा वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस. जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हैं, ठीक है जनाब, ये चलो लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं. किसी भी लिक्विड को जब हम हीट अप करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाती है. ठीक है, आ रही है बात समझ? ठीक है, जब लिक्विड को हीट अप किया तो वो गैस में चेंज हो गई. मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सर्टन ml या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड था, ठीक है, कितना, फॉर एग्जाम्पल कितना ही आपके पास लीटर ऑफ लिक्विड था, जब वो गैस में चेंज होगी तो इट विल एक्सपेंड और इट विल रिमेन द सेम. पहले मुझे सवाल का जवाब दो. Liquid when Expand, I change into think. gas, sorry, Expand, I think. It will evaporate. I cannot understand. What are you saying? Ayan, be allowed a bit. I'm saying it will evaporate, so it will expand maybe. Obviously it will expand because it will evaporate to change into a gas. देखो बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है. अगर एक चीज मेरे पास सॉलिड स्टेट में, मैं उसको मेल्ट कर दूं और वो लिक्विड बन जाए, ठीक है, तो वहां उसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगी. तो याद रखना, जब भी किसी चीज को हीट प्रोवाइड की जाती है, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो वो चीज एक्सपेंड करती है. मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरह दूंगी, अभी पूरा नेक्स्ट चैप्टर है ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ोगे ये सारा. तो कभी एक चीज नोट करना, आपके घर के जो वुडन डोर्स होते हैं, वही वुडन डोर्स, अक्सर ऐसा होता है कि अगर वो प्रॉपरली बने हुए नहीं होते ना, तो गर्मियों में वो डोर्स अटक रहे होते हैं, इजीली बंद नहीं हो रहे होते, खुल नहीं रहे होते. लेकिन विंटर्स में वही डोर्स बहुत इजीली ऑपरेशनल होते हैं. डू यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? Because in winters, when the temperature is low, the matter contracts. In summers, when the temperature is high, the matter expands. That means increase in temperature increases or results in thermal expansion of matter. आ रही है मेरी बात समझ? अब जरा यहाँ एक, तुमने अभी आइस की बात की है. अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कह रही हूँ कि थर्मल चेंज हो, is it only for Abdullah? ठीक, अच्छा, अब जरा जल्दी इसको हीट जो गैस मजीद एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी आपको. लेकिन अगर वाटर की एग्जांपल लो या लिक्विड की वाटर की एग्जांपल ले लो, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना. एक शीशे की पानी की बोतल लो, उसको बिल्कुल फुल पानी से भर लो, ठीक है, तुमने वो पानी जब फुल भर के बॉटल का लिड बंद कर दिया, इट विल रिमेन एज इट इज इफ इट इज लिक्विड वाटर. वही शीशे की बॉटल फ्रीजर में 3 दिन के लिए रख दो, जिसमें मुंह तक पानी भरा हुआ था. Can anyone tell me what will happen to that bottle after 3 days? Have you ever experimented that? क्या होगा? The glass will usually like break because of the expansion of the. Very good आयान. क्या होगा? वो लिक्विड जैसे ही सॉलिड में चेंज हुआ, जी जनाब बिल्कुल, the bottle will burst. अब जरा 1 मिनट यहाँ सुनना. एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो एक्सपेंड होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है तो मजीद एक्सपेंड होता है. तो ये कौन सा लिक्विड है, वाटर, जो कि सॉलिड में चेंज होके एक्सपेंड कर गया? सॉलिड में चेंज होके तो इसको कंप्रेस होना चाहिए था. इसने बोतल को क्यों फाड़ दिया? बिकॉज इट वाज अनेबल टू बी फिटेड इनटू दैट बॉटल नाउ आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. दैट मींस वाटर in its solid state expands, in liquid state it compress. Can I say that? Now do remember, water is an exceptional case with respect to physics. इस पे पूरी डिटेल में बात होगी अगले चैप्टर में. क्यों? Because it is actually the crystalline structure of water which is responsible for this
अनइवन बिहेवियर। आई बात समझ? तो आयान इस पे Yes. पूरी डिटेल में मैं जाऊंगी, ड्राई आइस पे भी और आपके पूरे इस टॉपिक पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। अभी मैंने सिर्फ क्लू दिया है कि वाटर की बात अगर करोगे तो वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस। मैं आपसे कह रही हूं कि हर स्टेट को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो थर्मल एक्सपेंशन अकर्स। सॉलिड को हीट दी, लिक्विड में चेंज हुआ, इट एक्सपेंड्स। लिक्विड को हीट दी, गैस में चेंज हुआ, फर्दर एक्सपेंड्स। बट वाटर इज एन एक्सेप्शनल लिक्विड which when freezed, right, it expands। तो अब इस पे हम बात अगली क्लास में करेंगे। ये वाली स्लाइड कॉपी हो गई है, मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. चलो Yes. जनाब, ओके, लेट्स मूव ऑन टू काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर नाउ। कॉपी करना है पूरा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर क्या कहता है? वही कहता है जो हम सबको पहले से पता है। इट स्टेट्स दैट all matter is made up of very tiny particles called atoms or the molecules। हर मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, वो लिक्विड हो या वो गैस हो, every matter is made up of very tiny particles। and what are those tiny particles called? Atoms। you know na, every matter, the tiny, the most smallest particle in any matter is the atom। एटम से आगे बनता है फिर एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, वो सारी चीजें जो केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ी होंगी। एटम, मॉलिक्यूल, फिर एलिमेंट, कंपाउंड, जो चीजें होती हैं वो बनती जाती है। तो द स्मॉलेस्ट एंटिटी फॉर एनी मैटर इज द एटम। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर actually says that the tiny particles, that means the atom that makes up the matter, these atoms are always in random motion। समझ आई? अगर सॉलिड की बात करो, दे आर मूविंग टू एंड फ्रो। लिक्विड की बात करो, they are randomly moving। ठीक है? Yes, exactly, this topic is related, this is thermal physics which is actually related to chemistry। आगे अब पढ़ोगे जब नेक्स्ट चैप्टर तो पता चलेगा ये बेसिस पढ़नी क्यों बहुत जरूरी थी। मैंने पहले ही कहा था ना, दिस चैप्टर इज मेनली बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। तो जनाब, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर कहता है कि all these particles are in constant random motion। सॉलिड में टू एंड फ्रो, लिक्विड में चले जाओ, रैंडम मोशन, गैसेस में चले जाओ, मजीद विगरस मोशन ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विल बी फाउंड और ऑब्जर्व। अब अगर हम काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर की बेसिस पे कुछ चीजें देखें तो कुछ पॉइंट्स हमारी ऑब्जर्वेशन में आते हैं जो कि वैसे ही आपको पता होंगे। ठीक है? बट लेट्स डिस्कस देम। आई होप एवरीबडी इज कॉपिंग इट डाउन, राइट? एवरीबडी इज कॉपिंग इट डाउन? Yes. Okay, good. Just wait. Okay, जनाब, तो हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। बेटा एक मिनट, जस्ट ओके जी। तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या है काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर की? सबसे पहले तो ये सुनते जाओ। पहली चीज ये है अभी जो मैंने आपको बताया, अब ये चीज अगर नहीं समझ आई ना तो आगे प्रेशर इन गैसेस पे अभी अटक जाओगे। जरा गौर से समझ लेना ये ऑब्जर्वेशंस। एट एन इंक्रीज टेम्परेचर, अगर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने के नतीजे में वो मॉलिक्यूल्स जो उस मैटर को बना रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ रेजिंग देयर टेम्परेचर। दैट मीन्स, अच्छा अगर मैं एनर्जी चेंज के हवाले से तुम पूछूं, अभी तुम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है, तो एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग विद द थर्मल एनर्जी। Which kind of energy change is taking place over here? Can anybody tell me? Thermal energy कौन सी एनर्जी में चेंज हो रही है when we heat up any state of matter? Kinetic. Very good, very good। Whenever we supply heat to any state of matter, that means the thermal energy, the thermal energy changes into kinetic energy of the molecules of that matter। That means increased temperature increases the kinetic energy, and you know that we have just studied kinetic energy is responsible for the motion of molecules, right? So when the temperature increases, the kinetic energy increases, and therefore the same molecules start vibrating more vigorously। ठीक है? उनकी vibrations बढ़ जाती है। And let me tell you over here, हम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, आपको पता है टेम्परेचर एक्चुअली है क्या चीज? टेम्परेचर इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the molecules present in any object। For example, अगर मैं बात करूं एक ग्लास ऑफ वाटर की, तो उस ग्लास ऑफ वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
उन सारे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ दैट ग्लास ऑफ वाटर. समझ आई? तो टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट मैटर. तो मैंने आपको क्या बताया? व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, the kinetic energy of the molecules present in that object increases, and once the kinetic energy increases, the molecules starts vibrating more vigorously. Achha, since we know that on the basis of kinetic model of matter, liquids and the gases, they fill the shape of the container. लिक्विड हो जाए या गैस हो जाए, जितने बड़े कंटेनर में डालोगे वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई. लिक्विड तो फॉर एग्जांपल एक ग्लास में डाल रहे हो, जितना लिक्विड है वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा. लेकिन अगर गैस को किसी कंटेनर में डालोगे तो जितनी भी आप स्पेस प्रोवाइड करोगे वो पूरी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा. दैट इज व्हाई वी से द गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम और द शेप. लिक्विड्स का फिर भी वॉल्यूम फिक्स होता है, गैसेस का तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, because they occupy the total space which is provided to them. So we can say the liquids and the gases fill the shape of the container, right? Because the particles are free to move about in them. Since in liquids and gases the particles can move randomly here and there, that is why they fill the shape of the container. Actually, solids, they retain their shape. The molecules are at their fixed positions and only vibrate to and fro. Okay? About the gases can easily diffuse from place to place. You must have studied in chemistry. केमिस्ट्री में पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होती है? जल्दी से बताओ क्या होती है डिफ्यूजन? When particles move freely to fill up the empty space. Very good. When the particles easily move from one place to another, this is known as diffusion. The gases can easily diffuse from one place to another since the molecules are very much farther away from each other. ठीक है जनाब? उसके बाद आ जाता है जी सॉलिड एक्सपेंड व्हेन दे मेल्ट इनटू लिक्विड. अभी मैंने आप लोगों को यही बताया है. ठीक है? यस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया. वेरी गुड निहाल. अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों को यही बताया कि व्हेनेवर वी प्रोवाइड हीट टू सॉलिड्स दे एक्सपेंड टू मेल्ट इनटू लिक्विड. हमेशा सॉलिड एक्सपेंड करेगा लिक्विड में चेंज होने के लिए जब वो मेल्ट हो रहा होगा. लिक्विड को हीट प्रोवाइड करोगे वो फर्दर एक्सपेंड करेगा टू वेपराइज इनटू a gas. So every matter, right? Every matter expands when heat is provided to them to change their state. Solid expands when changes into liquid. Liquids expands when changes into gas. Water is an exceptional case जो कि मैं अभी समझा रही थी. आखिरी पॉइंट है जी, liquids expand a lot when they evaporate into gas. बता दिया मैंने, हर मैटर एक्सपेंड करता है जब दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा होता है. सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, थोड़ा एक्सपेंड करेगा. लिक्विड को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे गैस में चेंज करने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगी सिंस द मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अवे. सो व्हेंस यू प्रोवाइड हीट द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विगरसली. अच्छा बताओ, विगरस वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता क्या है एक्चुअली? व्हाट द विगरस वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डू? कैन एनीवन टेल मी? हाँ ठीक है, it decreases the temperature, kinetic energy बढ़ जाती है. Actually the measure of क्या force of attraction कम हो जाती है, force of attraction decrease हो जाती है, expansion कम हो जाती है, force of attraction. हाँ ठीक है, because of changing of state force of attraction कम हो जाती है. ठीक है, एक चीज और जरा गौर करो. मैंने आपसे कहा when the heat is provided, ठीक है, the liquids expands to change into gas. ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है. आपको ऐसा नहीं लगता जब आपने किसी भी स्टेट को हीट प्रोवाइड की, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उन्होंने विगरसली वाइब्रेट करना शुरू किया, तो सबसे पहले तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे. वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर उनका बढ़ जाएगा. एक्सपेंशन होती कब है? जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एक्सपेंशन होती ही तब है. मैं एक एग्जांपल देते हुए आगे बढ़ूंगी. आप लोगों ने सुना होगा, गॉड फॉरबिड्स कि किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, प्रेशर कुकर जो घर में होते हैं ये कभी कभी बर्स्ट हो जाते हैं. सुना है आपने? यस Yes, miss. डू यू नो द फिनोमेना? व्हाई डू दे बर्स्ट? व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड इट? गैस को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बिल्ट अप. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा होता है, आपके कुकर का फंक्शन क्या होता है? वो गैस को ट्रैप करता है अपने अंदर
और प्रेशर जनरेट करता है। आप मुसलसल हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो प्रेशर कुकर पे, मुसलसल वो जो हीट है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही होती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर विगरसली। सिंस दे वाइब्रेट मोर विगरसली, they exert more and more of the pressure on each other and on the walls of the container. अब आपने देखा होगा जब प्रेशर ज्यादा बिल्टअप हो जाता है तो कुकर जो है वो विसल दे रहा होता है, और आपने देखा होगा उसमें से थोड़ी थोड़ी गैस साथ साथ इवॉल्व हो रही होती है। बट अगर वो पॉइंट जहां से गैस इवॉल्व हो रही होती है वो चौक हो जाए किसी भी वजह से, तो वो गैस इवॉल्व होने का उसको मौका नहीं मिलता और वो बढ़ता जाता है प्रेशर अंदर। एक वक्त आता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो कुकर बियर नहीं कर पाता एंड इट जस्ट बर्स्ट, जो कि बहुत डेंजरस भी हो जाता है और हजार्डियस भी हो जाता है, अल्लाह ना करे कभी हो। But actually this is the thing which happens behind it, that the increase in the kinetic energy of the molecules actually increases the pressure of the molecules, pressure of that gas which is found in the pressure cooker, since the molecules collide more and more with each other and with the walls of the container. Clear everyone? ये स्लाइड अगर कॉपी हो गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाए। चलो जनाब, अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और फिर पास पेपर्स की तरफ आ जाएंगे। दैट इज द प्रेशर इन गैसेस। बेटा ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। अभी तक तुम लोगों ने जो इस चैप्टर में पढ़ा वो बिल्कुल थ्योरी थी, केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। ये भी है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये थोड़ा सा लेकिन टेक्निकल है, जिसको थोड़ा सा एक दफा समझ लोगे आराम से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, खत्म यहाँ पे। ये इस टॉपिक के बाद प्रेशर इन गैसेस के बाद बस मैं इसकी वर्कशीट अभी करवा दूंगी, जो कि सुबह तुम लोगों ने सबने ले लिए, फोटोकॉपी करवा ली थी। ठीक है जनाब, वो करेंगे। मिस जी, डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, कैन यू पीपल प्लीज कीप योर माइक स्विच्ड ऑफ? आई डोंट वांट टू मिस बार-बार रिएक्ट कर रहा है, वो इमोजीज भेज रहा क्लास से है। निकाले इसको क्लास से निकाले। इब्राहिम कैन यू प्लीज स्टे क्वाइट? जिंदगी तो अच्छी है नहीं, लाफिंग इमोजीज भेज। जरियाब इसके बाद बेटा किक आउट हो जाओगे, वरना बिल्कुल अब इसके बाद माइक ऑन नहीं होना चाहिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग। ओके अच्छा जनाब, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेशर इन गैसेस। हम बात कर रहे हैं प्रेशर इन गैसेस की। तो सबसे पहला तो मेरा वही सवाल है जो अभी मैंने तुम लोगों को बताया, एक गैस में प्रेशर होता क्यों है, किस वजह से होता है प्रेशर? यस एनीवन? हाई काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। फर्ज करो अगर मैं कह रही हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, तब क्या कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की? होगी। ओके मैं पूछ रही हूँ एक गैस को एक कंटेनर में रखा हुआ है कॉन्स्टेंटली, ना उसका प्रेशर हमने बढ़ाया है ना उसका टेम्परेचर बढ़ाया है, कुछ भी नहीं कर रहे हम। वेरी गुड, दिस इज सैयद अहमद। हु इज दिस? ठीक है, वेरी गुड। It's actually because of the collision of the molecules with each other and even with the walls of the container that the pressure is built up in. Shahan is there. Okay, good, Shahan. So it is actually the collision of the molecules of a gas with each other and with the walls of the container that the pressure is found in a gas. तो जो गैसियस प्रेशर होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वजह से होता है। इतना समझ आ गया सबको कि प्रेशर नॉर्मली अगर टेम्परेचर ना भी बढ़ाओ तो एक गैस का प्रेशर होता है, और वो प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर सिंस दे आर इन रैंडम मोशन and even with the walls of the container. They exert pressure on the container as well, and upon the molecules with each other, collision with each other also exerts pressure upon them. That is the reason why the pressure is found in a gas. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ये छोटी सी चीज, एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कराती हुई चलूंगी, जिसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक टेम्परेचर होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये कौन सा टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पे एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लो ताकि आगे जाके टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखना, ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल होता है। देखो मैंने वर्ड यूज किया थ्योरेटिकली, इसका मतलब है प्रैक्टिकली ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है, वो कम से कम तरीन टेम्परेचर है जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल होता है। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे वी अज्यूम दैट थ्योरेटिकली
the motion of particles, ठीक है, in a gas would be minimal, would be the minimum, कम से कम तरीन हो जाएगा motion of the particles, or in simpler words I can say it is that least temperature at which the kinetic energy of the molecules becomes zero. ये वो lowest temperature है जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जीरो हो जाती है. अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जीरो हो गई तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो. लेकिन अब यहां मुझे असल बात आपको बताने दें, इट इज नॉट द जीरो इन सेल्सियस स्केल. ये जीरो सेल्सियस का बिल्कुल भी नहीं है. ये जीरो किसका है, इट इज द जीरो ऑफ केल्विन स्केल, और जीरो ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड. अब तुम लोग सोचो, हम कराची में विंटर्स में टेम्परेचर अगर 5, 6, 7 पे भी चला जाए तो इट्स अनबियरेबल फॉर ऑल ऑफ अस. हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाज़ दफ़ा हाथों में देखना नमनेस होने लगती है, सुन होने लगते हैं हमारे हाथ, हमारे पाँव ठंड से. दैट इज द रीजन व्हाई वी वेयर ग्लव्स इन विंटर्स. ठीक है जनाब, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, हमारे जो हाथों के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी मैं बता चुकी हूँ इज एक्चुअली द मेजर ऑफ टेम्परेचर, इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सही है. तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब है बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, और उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम ग्लव्स पहन लेते हैं. ठीक है, अब जरा मेरा पॉइंट जरूर अच्छे से समझ लेना ताकि आगे समझने में मुश्किल ना हो. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस मिनिमम, थ्योरेटिकली वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे मोशन ऑफ द पार्टिकल्स वुड बी मिनिमम. मोशन ऑफ द पार्टिकल्स मिनिमम कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम minimum, or in simpler words we say when the kinetic energy of the molecules becomes zero, the motion of the molecules become minimum. And at which temperature the motion of the molecules becomes minimum, it is the 0 Kelvin. आगे समझ. And 0 Kelvin is exactly equal to -273 degree centigrade. मैं फिर से समझ आ समझा गया ये? दूंगी. अच्छा, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको अच्छी तरह. मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे थ्योरेटिकली आपकी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन बिल्कुल मिनिमल हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है. मोशन किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का मिनिमल होने का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो की तरफ जा रही है. आ रही है मेरी बात समझ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मैं बार बार कह रही हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वी आर डिस्कसिंग इट थ्योरेटिकली फॉर सम कैलकुलेशंस. क्यों तो सॉरी, प्रैक्टिकली क्यों नहीं पॉसिबल? अच्छा, प्रैक्टिकली क्यों नहीं पॉसिबल है, अभी मैं इसका जवाब देती हूँ. अभी जब तुम्हें रिलेशनशिप समझाऊंगी अगली टेम्परेचर और वॉल्यूम की, तब मैं बताऊंगी कि प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसका बहुत अच्छा जरिया मुझे अपना क्वेश्चन याद दिलाना, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब दूंगी. अभी एब्सोल्यूट जीरो समझ लो. ठीक है जनाब, एब्सोल्यूट. उमर, फिर मुझे मत कहना मिस इस पूरी क्लास को फॉर्मूलाज याद कैसे हो जाते हैं और मुझे क्यों नहीं होते. वो इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो. जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की. ठीक है जनाब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अहमद तुमने मुझसे पूछा था, दोबारा समझा दें. वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है. समझ आई? इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन बिल्कुल खत्म हो जाता है. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर 0 Kelvin, and 0 Kelvin is equivalent to -273 degrees centigrade. अब समझ आ गई अहमद? Yes. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 Kelvin. जहां भी वर्ड एब्सोल्यूट जीरो यूज होगा समझ जाना एब्सोल्यूट जीरो इज 0 Kelvin, not 0 centigrade, because 0 Kelvin is equal to -273 degrees centigrade. Clear everyone? Right? And it is that lowest temperature at which the
motion of the molecules actually ceases, खत्म हो जाता है motion of the molecules. Why? Because of the kinetic energy becomes almost zero. चलो जनाब, have you all copied this slide? Shall I move on to the next one? Yes. Yes, ये sir. reactions भेजने बंद कर दो प्लीज, उसके बजाय फोकस कर लो काम पे. Who is saying? एक मिनट, just a second. देखो, इट्स अप टू यू, क्लास इज फॉर यू पीपल, नॉट फॉर मी. पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा देना है. आखिरी टॉपिक काफी टेक्निकल है, उसके बाद मैं अभी वर्कशीट भी करा दूंगी. कंप्लीट करना ना करना ये आप लोगों का काम है. अब आप सोच लो, नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पास पेपर्स भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं. यू नो, ओनली 1 वीक इज लेफ्ट एंड बेटा यू नीड टू वर्क ऑन इट नाउ. मिस सबा, आपके समझ आ रही? हिसाब से ना टोटल फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो? बस हार्डली 2 दिन का और रह गया इसके बाद, हार्डली. ठीक है, चलो जनाब. Okay, let's move on to the next slide. Shall I? Stop writing in the Yes. comments. Stop writing in the comments, I said. Okay, I am moving on to the next slide. अब आ गया हमारा असल टेक्निकल टॉपिक जो आप लोगों ने समझना है. अब आपको याद है, मैंने आपको वो जब चैप्टर प्रेशर पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था द टॉपिक प्रेशर इन गैसेस has been excluded from the chapter pressure and has now been included in chapter kinetic model of matter. समझो, मैं ये वो टॉपिक जो पहले प्रेशर का था, अब आपको यहाँ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में करा रही हूँ. अच्छा, अब इस स्लाइड से क्या कॉपी करना है, जरा मेरी बात सुन लो. आपने हेडिंग डालनी है, आपके सामने जो टेक्स्ट है वो कॉपी करना है, और ये दोनों ऊपर वाले ग्राफ्स एज इट इज कॉपी करना है. नीचे डायग्राम कॉपी करने की जरूरत नहीं है. डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, आपने सिर्फ ये दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, रफ ग्राफ. ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, ये कॉपी करने दोनों ग्राफ्स और ऊपर वाली स्टेटमेंट. अच्छा जनाब, प्रेशर इन गैसेस की जब भी बात होती है तो हम प्रेशर इन गैसेस को डिस्कस करते हैं 3 रिलेशनशिप्स की बेसिस पे. वो 3 रिलेशनशिप्स कौन सी हैं? पहली है आपकी प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, दूसरी है आपकी प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरी है आपकी वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप. अभी हम बात कर रहे हैं पहली रिलेशनशिप पे, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट. आ गई बात समझ? अब बेटा पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना, क्योंकि स्लाइड में इतना ज्यादा कॉपी करने का है नहीं, लेकिन समझने की जो चीज है वो बहुत टेक्निकल है. समझ लो. अच्छा, समझाऊंगी मैं आपको. जो सबसे नीचे डायग्राम है ना, इसको जरा गौर से देखो. इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? 2 बंसन बर्नर्स हैं. ठीक है, दोनों बंसन बर्नर्स के ऊपर रखा हुआ है एक एक बीकर. कैन यू ऑल सी दैट? बीकर के अंदर मौजूद है एक एक अदद सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस, और इस सिलेंडर के टॉप पे हमने लगाया हुआ है फिक्स्ड पिस्टन. दिस इज कॉल्ड पिस्टन. ठीक है, अ फिक्स्ड बार विद अ हैंडल. दिस इज कॉल्ड पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर. अब यहाँ हमने इस पिस्टन के थ्रू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को कांस्टेंट रखा हुआ है. ना तो ये पिस्टन ऊपर मूव कर सकता है, ना ही ये पिस्टन नीचे मूव कर सकता है. यानी इसका मतलब है इन दोनों गैस सिलेंडर्स में क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ठीक है, दोनों गैस सिलेंडर्स की फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, लेट्स सपोज 5 मीटर क्यूब, दोनों की वॉल्यूम है. ठीक है, आपको मिल गई दोनों की वॉल्यूम, दैट इज कांस्टेंट. नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ गैस मौजूद है, सेम मास. देखो 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स, इधर भी 6 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दैट मीन्स द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट. अब मुझे बताओ, पहली फिगर में आप देखो टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो है 200 केल्विन. आपका फ्लेम हल्का है. दूसरे फिगर में इंशाल्लाह बस ये 2 टॉपिक्स बचे, उसके बाद वर्कशीट कराऊंगी. अगर हार्डली मैं 45 मिनट्स भी और ले लूं तो बेटा इट्स फॉर यू. समझ आई? आपके लिए कवर करवाया जा रहा है. अच्छा जनाब, अब दूसरी फिगर में देखो, टेम्परेचर डबल कर दिया मैंने, 200 केल्विन के बजाय 400 केल्विन कर दिया. ठीक है जनाब, मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने का असर मॉलिक्यूल्स पे यानी प्रेशर पे क्या होगा?
जो एक दोनों के अंदर सेम गैसेस थी, सही है, सेम वॉल्यूम है, सेम मास है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या चीज बढ़ेगी? यस एनीवन, आई वांट टू नो प्रेशर, क्यों बढ़ेगा प्रेशर? जवाब कौन देगा इसका? क्योंकि वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बढ़ है। जाएगी। एक्सीलेंट तलाल, वेरी गुड। होगा क्या यहाँ, जब आपने टेम्परेचर डबल किया, 200 केल्विन से 400 केल्विन किया, तो मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी भी डबल हो गई? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई काइनेटिक एनर्जी में। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। मैं पहले बता चुकी हूँ, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जहां टेम्परेचर बढ़ा, समझो आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या होगा? यस, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तेज घूमना शुरू कर देंगे। yes, the particles will vibrate more vigorously in figure 2, and because of the vigorous vibrations they will collide more and more with each other and with the walls of the container. ज्यादा collisions की वजह से क्या बढ़ जाएगा दूसरे कंटेनर में? क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। वेरी गुड। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है तो बढ़ते टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी यस बढ़ेगा, बढ़ेगा। सो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज इट? डायरेक्टली proportional. Very good, excellent. That means whenever the temperature of a gas is increased, keeping the volume of the cylinder constant, then the pressure of that gas also increases. So simply, temperature is directly proportional to the pressure of a gas if the volume is kept constant. अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसे बनता है? अगर मैं कहूं टेम्परेचर को ले लो एक्स एक्सिस पे और प्रेशर को ले लो वाई एक्सिस पे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसे बनता है? हाँ जी, कैसे बनता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ? Slanted line. Yes, it's a line with a positive gradient, straight line with a positive gradient. अच्छा जी, अब जरा असल बात आपको बताती चलूं, जो टेक्निकलिटी है इस टॉपिक की। पहला ग्राफ अगर आपको नजर आ रहा हो, इट्स अ टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ एंड द टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन। किसमें लिया गया है टेम्परेचर? केल्विन, केल्विन। 0 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है? उसका क्या नाम होता है 0 केल्विन का? minus 273 degrees Celsius. वो तो तुम इक्विवेलेंसी बता रहे हो, मैं कह रही हूँ 0 केल्विन का नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। Yes. And what happens at absolute zero temperature? मैंने अभी बताया था. That means the molecular movement becomes almost zero. जब, अब जरा गौर से समझना, जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स मूव करना बिल्कुल छोड़ देंगे, मूवमेंट ही नहीं रहेगी मॉलिक्यूल्स की, जीरो हो जाएगी मूवमेंट, तो क्या वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे एक दूसरे पे? नो। अब जरा एक चीज पे गौर करना, पहले ग्राफ में देखो 0 केल्विन जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, उस पे क्या हुआ? आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिनिमल हो गई, कम से कम हो गई। दैट मींस द मॉलिक्यूल्स स्टॉप्ड मूविंग और वाइब्रेटिंग and therefore the pressure also became zero. So 0 Kelvin is the temperature at which the pressure can be zero. But do you think if I'll plot the same graph in centigrade, ये देखो वही pressure है, only the temperature is taken in centigrade. So do you think at 0 centigrade the pressure can become zero? Why no? Can anyone explain? And 0 centigrade is? 0 centigrade is not the absolute zero. आ गई बात समझ? It is not that minimum temperature at which the kinetic energy stops or is reduced or becomes ceases. आ रही है मेरी बात समझ? 0 केल्विन पे तो मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, वो -273 डिग्री टेम्परेचर है, जिस पे आपका प्रेशर भी जीरो हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। लेकिन 0 सेंटीग्रेड
इज इक्वल टू 273 केल्विन. वहां 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन से बहुत आगे की वैल्यू है 0 सेंटीग्रेड. तो वहां कभी भी आपका प्रेशर 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज the molecules are in random motion at 0 centigrade. They have certain kinetic energy. It is not the minimum temperature. अब ये सेकंड ग्राफ देखो तो तुम्हें एग्जैक्टली समझ आएगा. अगर मैं ये ग्राफ सेंटीग्रेड में प्लॉट करूं तो आपको मैं ये बता चुकी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर विच इज इक्वलेंट टू 0 केल्विन. यानी इस पॉइंट पे समझो -273 डिग्रीज पे आपका केल्विन टेम्परेचर क्या है? 0. यहां पे आपका केल्विन टेम्परेचर क्या है? 0. Come on, 0. And 0 Kelvin is the absolute zero temperature at which the kinetic energy becomes 0 and the pressure also becomes 0. तो यहाँ पे देखो, अगर सेंटीग्रेड में यही प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट होगा तो 0 सेंटीग्रेड पे प्रेशर 0 नहीं हो सकता. It will be -273 degree centigrade, which is actually the 0 Kelvin at which the pressure will become 0. अभी आपके लास्ट ईयर के पेपर में, बल्कि लास्ट ईयर के ग्रेड 9 के फाइनल टर्म के पेपर का क्वेश्चन था कि विच ग्राफ, 4 ग्राफ्स गिवन थे, विच ग्राफ एग्जैक्टली शोज द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ अ गैस. समझ आई? उन्होंने आपको जो ग्राफ गिवन था वो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ था सेंटीग्रेड में. मुझे बताओ, एक ग्राफ अगर यहाँ केल्विन के बजाय सेंटीग्रेड में ले लूं तो क्या ये ग्राफ ऐसे करेक्ट हो सकता है? Why no? Why no? The pressure is 0. Pressure. And at 0 centigrade, the pressure can never be 0. Yes, the pressure can never be 0 because the molecules have certain kinetic energy and they do vibrate and therefore they do exert certain pressure. So at 0 degree centigrade, the pressure can never be 0. So this graph is wrong for 0 centigrade. But it's perfectly correct for 0 Kelvin. अगर मैं आपसे कहूं ये वाले ग्राफ में ये पीछे का पूरा पोर्शन हटा दो और सिर्फ इतना ग्राफ दो, ठीक है, ये आगे का पोर्शन ले लो, ठीक है. अब बताओ, अगर मैं यही पूछूं विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, तो हमेशा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर शुड बी अ सर्टेन वैल्यू अदर देन 0. क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. सबको आ गई समझ अच्छी तरह? ये क्या बात बताई अभी मैंने? Yes. Come on, let me know. Okay. Have you copied it? एक दफा दोबारा से बता रही हूँ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप क्या है. अगर किसी गैस को पिस्टन्स में लगा के एक सिलेंडर में रखा हुआ है, दैट मीन्स उसका मास और वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो अगर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ते टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी उसका बढ़ता चला जाएगा, because increase in temperature increases the kinetic energy and therefore molecules collide more and more with each other and with the walls of the container, therefore the pressure increases. अब अगर मैं कहूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ बना दो, तो हाउ विल यू ड्रॉ इट? फॉर टेम्परेचर इन केल्विन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज 0 0. बट फॉर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड it will never start from origin. Why? Because at 0 degree centigrade the pressure can never be 0, because at 0 degree centigrade the molecules possess certain kinetic energy, and because of that kinetic energy they vibrate, they collide, and therefore exert certain pressure. So at 0 degree centigrade the pressure value will be some other value other than 0. So the second graph illustrates that other value. समझ आ गई? और सेंटीग्रेड में -273 degree centigrade will be that value of temperature at which the pressure will become 0. Clear to every one of you? Yes. Come on. Shall I move ahead? Ahmed, you want to ask something? बस कितनी साइड्स बाकी हैं? 2 बाकी हैं बस. जी, अब आप बताइए, और किसने हाथ उठाया था? उस्मान, you want to ask something? Okay. ठीक है, चलो जी. I am moving on to the next relationship. That is actually the Boyle's law. अच्छा जी, अब जरा जल्दी से ये समझ लो, इसके बाद बस एक और रिलेशनशिप बची है हमारी, दैट विल बी द लास्ट वन, फिर मैं वर्कशीट पे आ जाऊंगी. सेकंड टॉपिक है मेरा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, दैट इज एक्चुअली द बॉयल्स लॉ. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहता है? सबसे पहले तो जी बिल्कुल कॉपी करना है, एवरीथिंग हैज टू बी कॉपीड.
प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एक्चुअली स्टेट्स क्या है, जरा पहले ही समझ लो. प्रेशर ऑफ अ गैस is inversely proportional to the volume if the mass and the temperature of gas are kept constant. पहले मुझे जरा एक फिगर शो करने दो आपको, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा. Can you all see this figure on the screen? Yes, everyone. Let me, for the time being, let me enlarge it. Just for the time being. हाँ जी, मुझे बताओ ये फिगर मैंने इनलार्ज की है जस्ट फॉर द टाइम बीइंग. नजर आ रही है सबको स्क्रीन पे? जी. यस. ओके, अब जरा गौर से देखना और समझना इस फिगर में हो क्या रहा है. दोनों फिगर्स में एक एक अदद सिलेंडर है, ठीक है. दोनों सिलेंडर्स की जो पिस्टन है वो फिक्स नहीं है. क्या है? वो फिक्स नहीं है, ठीक है. दैट मीन्स द पिस्टन इज अलाउड टू मूव अप और डाउन एज पर द प्रेशर. अब इस दोनों केसेस में फिक्स क्या रखा हुआ है? यू कैन सी द टेम्परेचर 300 Kelvin and 300 Kelvin. Can you all see that? Can you all see that? Yes. Right? So that means the temperature in both the experiments is kept constant. The mass of the gas in both the experiments is kept constant. The temperature and mass are constant here. अब आपने रिलेशनशिप किस में देखनी है? प्रेशर और वॉल्यूम में देखनी है. आपके पास यहाँ पे ये देखो एक मीटर लगा हुआ है जो कि प्रेशर की रीडिंग को शो कर रहा है. कैन यू सी द मीटर्स शोइंग द रीडिंग ऑफ द प्रेशर? कैन यू ऑल? Yes. पहली वाली फिगर में मुझे बताओ प्रेशर कितना पास्कल्स है गैस पे? 1, दूसरी फिगर में प्रेशर कितना है? 2. 2. जब प्रेशर बढ़ा, ठीक है, हमने क्या कहा? जरा एक मिनट पहले पिछली स्लाइड को देखो, फिर ये चीज समझ और अच्छे से आएगी. मैंने आपसे कहा, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक, मैंने आपसे कहा यहाँ पे प्रेशर ऑफ अ गैस is inversely proportional to the volume if mass and temperature of the gas are kept constant. अब यहाँ हो क्या रहा है? एक्चुअली ये जो प्रेशर मीटर है, it is actually measuring the pressure. What you are doing, the mass of the gas is kept constant, the temperature of the gas is kept constant. You are only bringing a change in the volume of the gas. यहाँ पे आपने वॉल्यूम, हाँ हाँ, ये मास ऑफ द गैस कहाँ है लिखा है और ये कांस्टेंट कैसे है? ये ऐसे कांस्टेंट है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करो दोनों सिलेंडर्स में, इट इज द सेम, व्हिच शोज दैट द मास इज सेम इन बोथ द सिलेंडर्स. समझ आ गई उमर? इससे नंबर कहाँ लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन किसकी बात कर रहे हो. तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं फिगर तुम्हें एक शो कर रही हूँ. तुम्हारी स्क्रीन पे फिगर नजर आ रही है? यस. फिगर में आपको ये दो टेम्परेचर जो मीटर्स हैं ये नजर आ रहे हैं? यस. दे आर शोइंग द सेम टेम्परेचर. यस. व्हाट इज मास? कैन यू प्लीज डिफाइन इट? मास मिस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ मास कहाँ लिखा है. मास किस चीज से इलस्ट्रेट कर रहे हैं? हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस से मास इलस्ट्रेट कर रहे हैं. अब आ गई समझ? बात समझ आ गई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज एक्चुअली इलस्ट्रेटिंग द मास ऑफ द गैस. काउंट कर लो, जितने मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर में उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस आर प्रेजेंट इन द सेकंड सिलेंडर. दैट मींस द मास एंड द टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट. अब आपने किया क्या? पहले में वॉल्यूम था सिलेंडर का, आपने रखा 4. जब आपने वॉल्यूम रखा 4 तो आपका प्रेशर कितना आ रहा था मीटर पे? 1 पास्कल. फिर आपने क्या किया? आपने पिस्टन को प्रेस किया डाउनवर्ड और आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्रेस करके कितना कर दिया? अब कितना कर दिया? 2 कर दिया, यानी एग्जैक्टली हाफ कर दिया. मुझे बताओ, जब आपने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई? डबल हो गई. यानी कि जब वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ गया, जब वॉल्यूम ज्यादा था तो प्रेशर कम था. अब बताओ रिलेशनशिप क्या है दोनों की? इनवर्स. अब समझ आ गया? दैट मीन्स whenever we increase the volume of a gas at constant temperature and mass, the pressure
क्या होता है? व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर डिक्रीजेस, व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेस। क्लियर हो गई बात अब इस फिगर से? अब जरा मैं जाती हूं इसकी डिटेल्स में, ठीक है जनाब? पिछली स्लाइड पे जा रही हूँ विच यू कैन कॉपी। चलो जनाब अब आ जाओ स्लाइड पे। अब ये देखो जो अभी मैंने बताया वही चीज मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी भी गैस का प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के वॉल्यूम के। कब? जब मास और टेम्परेचर उस गैस का कांस्टेंट रखा जाए। जब भी किसी गैस का टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रखा होता है और आप सिर्फ उसके वॉल्यूम को चेंज कर रहे होते हो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका प्रेशर जाता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा गैस का? कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। This relationship of pressure and volume of a gas is also known as Boyle's law. What is it known as? What is it known as? Robert Boyle's law. G. It is known as the Boyle's law. Can I write it like this? Pressure is proportional to 1 over V. ये inverse को show कर रहा है. Can I write it like this? जल्दी बताओ. Pressure is inversely proportional to volume. That is, pressure is proportional to 1 over V. अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं और इक्वल टू इंसर्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? What is this K? Constant. This K is the constant which comes because of removing the proportionality sign, right? So can I write it like this? ये P, आप ये देखो P is equals to K upon V हो गया. Can I write it like this? अगर ये जो डिनोमिनेटर में V है मैं इसको P के साथ ले आऊं तो can I say that the product of pressure and volume of a gas is always a constant? बताओ जल्दी. हाँ जी, can I say it? Come on. Am I audible? Okay, good. I am saying, can I say that ये देखो pressure is proportional to 1 over V since this is the inverse proportionality relationship. मैंने proportionality हटा के constant introduce करा दिया P is equals to K upon V. अब ये जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम था इसको मैं ले गई प्रेशर के पास मल्टीप्लाई करने तो इक्वेशन क्या बन गई? प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम गिव्स अ कांस्टेंट दैट इज K. So can I write it like this that the product of pressure and volume is a constant always? Yes. Yes. ठीक है. अच्छा जनाब, now this becomes the equation of Boyle's law which is the first and the last formula introduced in this chapter. On the basis of only this formula you are going to solve all the numericals for this chapter in the worksheet अभी. ठीक है जनाब. तो अब रिलेशनशिप आपका क्या बन गया? देखो मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. दैट मींस इफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है और वॉल्यूम या प्रेशर में चेंज आ रहा है किसी भी एक ही गैस के, तो कैन आई से that the initial temperature, the product of initial temperature and the initial volume is equal to the product of final pressure and the final volume. Can I say that? हाँ जी, can I say that? Come on, let me know. अच्छा, मैं इसको जरा न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करूं? Do you want me to explain it numerically? Okay. अगली स्लाइड देखो, मैं न्यूमेरिकली इसको एक्सप्लेन करती हूँ फिर समझ आ जाएगा. मैंने आपसे कहा किसी भी एक सिमिलर गैस के लिए, किसी भी एक सिमिलर गैस के लिए अगर उसका टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रखा हुआ है, सिंस फ्रॉम द इक्वेशन यू हैव सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ये ड्राइव कर लिया तुमने. मैं आपसे कह रही हूँ Boyle's law states that if the temperature and the mass are kept constant for a gas, so the change in volume or the pressure, ठीक है, so the change in the pressure and the volume of the gas, it will always be a constant value. वो किस तरह? ये देखो इधर आ जाओ. This is the initial case, this is the final case for a same gas. एक ही गैस के लिए ये देखो, ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट है, ये उसी का फाइनल है. इनिशियल में मुझे बताओ वॉल्यूम कितना है? न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वॉल्यूम?
4 प्रेशर कितना है? 1 1. प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कितना निकल रहा है यहाँ? 300. है मैं पूछ रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर. 4. 4. That is 4 volume multiplied by 1 pressure gives you 4 ones are 4. So the product of pressure and volume over here is 4. यहाँ आपने वॉल्यूम आधा कर दिया. जब वॉल्यूम आधा किया तो प्रेशर क्या हो गया? डबल हो गया. ये उसी सेम गैस का है कंडीशन, फाइनल कंडीशन. यहाँ पे भी जरा कैलकुलेट करो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. Now over here the volume is 2 and the pressure is 2. So what is the value? 4. अब बताओ दोनों में सेम आ रही है? Yes. मैंने यही कहा. The product of pressure and volume initially would exactly be equal to the product of pressure and volume finally if the temperature and the mass are kept constant. That is P1 V1 यानी initial product of pressure and volume is equals to P2 V2, that is the final product of pressure and volume. It will always be constant, it will always be same for a same gas if the temperature and mass of that gas are kept constant. Now is it clear to everyone? अब समझ आ गई कि हाउ P1 V1 is equals to P2 V2. ये देखो जब प्रेशर 4 था, सॉरी जब वॉल्यूम 4 था प्रेशर 1 था. जब वॉल्यूम 2 हो गया तो प्रेशर डबल हो गया, 2 हो गया. 2 2s are 4 और यहाँ 4 1s are 4. दोनों तरफ इक्वेशन के सेम आंसर आ रहे Yes, yes. and it will always be the same if the temperature and mass are kept constant. And this is actually the Boyle's law, that the product of pressure and volume of a gas initially would be equal to the pressure and volume of that gas finally if there is a change in volume or the pressure of that gas and the temperature and the mass are kept constant. Done हो गई? अच्छा, अब अगर फर्ज करो किसी न्यूमेरिकल में मैं एक गैस का इनिशियल वॉल्यूम दे दूं, इनिशियल प्रेशर दे दूं और फाइनल वॉल्यूम दे दूं और तुमसे पूछूं कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? यस. तो ये न्यूमेरिकल्स में बस ये आता है. समझ आ गई? अच्छा, अब जरा जल्दी से आ जाओ ग्राफ पे. अगर मैं आपसे कहूं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, you have seen that it's not a direct proportional relationship, it's an inverse proportional relationship. तो अगर डायरेक्ट प्रेशर और वॉल्यूम को लोगे, ठीक है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी? बताओ, स्ट्रेट लाइन मिलेगी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में? नहीं, you will get a curve. And which type of the curve is it? It is a decreasing rate curve. The gradient is being horizontal over the time. ठीक है? So the relationship between pressure and volume is inversely proportional, which is a decreasing rate curve. That means if the volume increases, the pressure keeps on decreasing at a decreasing rate. आ गई समझ? Clear to everyone? जल्दी से बताइए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं. क्लियर. No. Okay, Zed. Repeat. Okay, Zed. I'm repeating it. मैंने आपसे कहा सिंस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करूं तो इट विल ऑलवेज बी अ कर्व सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कर्व कौन सा है? इट्स अ डिक्रीजिंग रेट कर्व. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो विद द इंक्रीजिंग वॉल्यूम द प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. ये कौन सा कर्व है? डिक्रीजिंग रेट कर्व है. प्रेशर भी ओवर द टाइम वॉल्यूम के साथ, बढ़ती वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर कम तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे कम होता जा रहा है. तो हाउ विल आई डिफाइन इट? दैट विद द इंक्रीजिंग वॉल्यूम द प्रेशर डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. नाउ क्लियर टू एवरीवन? Yes, shall I move on to the next slide? ये है आपकी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. चलो जनाब, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जरा इसी को मैं एक और तरह इलिस्ट्रेट कर लूं. अभी मैंने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट. जब प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट प्लॉट किया तो क्या बना? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप थी, कर्व आ गया. अगर मैं प्रेशर को प्लॉट करूं 1 ओवर वॉल्यूम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. मैं बजाय कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? अगर 1 ओवर v लिख रही हूं, समझ रहे हो,
तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्चुअली डायरेक्टली है ना, डायरेक्ट बन गया 1/वॉल्यूम, तो देन यू विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी, अगर उन्होंने प्रेशर को प्लॉट किया है अगेंस्ट वॉल्यूम तो इट विल बी अ डिक्रीजिंग रेट कर्व, लेकिन अगर उन्होंने प्रेशर को प्लॉट किया है अगेंस्ट 1/वॉल्यूम के तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। ये याद रखना, ये लिख भी लो और ड्रॉ भी कर लो। क्लियर? इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो वैल्यूज लेके। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है बेटा कि एक में आपने प्रेशर और वॉल्यूम को डायरेक्ट प्लॉट किया है और दूसरे में प्रेशर को 1/वॉल्यूम से प्लॉट कर रहे हो, यानी जो भी वॉल्यूम की वैल्यूज हैं उन्हें 1 से डिवाइड कर करके अपनी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे रख रहे हो। करके भी देख लो, मैं एक टेबुलेशन डाटा देती हूँ, उसकी बेसिस पे प्लॉट करके भी देख लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट करो वॉल्यूम की वैल्यूज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 वॉल्यूम, 0 बेटा खत्म होने वाले, बस लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। जब अच्छा 0 वॉल्यूम, उसके बाद 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ते वॉल्यूम के साथ प्रेशर आपका क्या हो रहा होता है? रिड्यूस हो रहा होता है। तो फर्स्ट करो, अगर मैं आपसे कह रही हूं कि 0 वॉल्यूम पे, ठीक है, आपका प्रेशर कितना है, हम 1 के अगेंस्ट करें, जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर आपका कम होता चला जाता है बढ़ते वॉल्यूम के साथ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ ग्रेटेस्ट